Namaskar, Jai Shri Krishna. Very good evening to all of you. Respected Shri A. Pramod Jain sir, Central Council member from Northern India region, Chairman CSR Committee, Vice Chairman Direct Tax Committee, Member of Finance Committee, Member Disciplinary Committee, and having so many brief detailed profile, but I am just introducing him in a short manner. Partner of Lunawat and Company, and central again second our today's chief guest CA सिग्नल इशू है चेयरमैन सर के साथ। हाँ, नेटवर्क इशू है सर। हाँ, नेटवर्क इशू। my dear friend CA Dinesh Ji Jain, Chairman, Secretary CARC, and other members who are watching this virtual webinar on conversion of partnership into LLP or conversion of companies into LLP with special reference to CA firm. बेसिकली फ्रेंड्स, आज कई सारी कंपनियां, कई सारी फॉर्म्स जो है तेजी से नेटवर्किंग और मर्जर की जो हमारी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना है कि हम देश में बिग 4 की जैसे बिग इंडियन फर्म्स को भी क्रिएट करें, उसी दृष्टि से काम करते हुए इंस्टीट्यूट ने ये सारी एक्टिविटीज करी है। तो जैसे जैसे हमारी परिवार बड़ा होता है, पार्टनर्स बढ़ते हैं, तो कई सारे लिटिगेशंस और कई सारे दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज उसमें बीच में आना शुरू हो जाते हैं, और उसी के साथ उसकी रिलेटेड रिस्क भी बढ़ती जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज जो समय की डिमांड है उसको उसमें मुझे प्रमोद जैन सर से बेटर इस टॉपिक पे कोई स्पीकर नहीं लगा, तो मैंने जैन साहब को रिक्वेस्ट करी थी कि सर आपका एक टॉपिक विद स्पेशल रेफरेंस टू सीए फॉर्म कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी, तो आपका रखें। आपने इमीडिएटली मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। आई एम आल्सो थैंकफुल टू प्रमोद बूप सर, जिनकी गाइडेंस में आज हमें काम करते करते लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। जब जब भी हमें इनकी गाइडेंस की जरूरत रही, ये हमेशा साथ रहे, और जिस तरीके से और जिस एक यंग एक एल्डर ब्रदर की तरह हर समय ये हमें गाइड करते रहते हैं, और इनसे जो है पिछले 7 महीने के टेन्योर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और लगता है कि कई सारे जो है, अगर आपके पास अच्छे लोगों से आप घिरे रहते हैं तो आप खुद अच्छे बन जाते हैं, और जब आप अच्छे बन जाते हैं तो अच्छे काम ऑटोमेटिकली आपके थ्रू होने लगते हैं। तो थैंक यू प्रमोद सर for accepting my invitation to come as a chief guest of this today's program. So without wasting much of your time, now straight forward, I am calling Pramod Boop sir for his opening remarks. Thank you, Devenji. Respected, dynamic and vibrant Chairman CIRC, CA Devin Somani ji, ever smiling and energetic Secretary CA Dinesh Jain Sahab, and their entire team of dedicated and committed Regional Council members. Friends, I can say they lead with a clear and compelling vision, aligning team members with a sense of direction and focus. It gives the team something to aim at, something to make happen, and something to manifest into positive results. Whenever one speaks to them, one feels that one has known them for long, since they possess that knack of sharing the pulse of wisdom emanating out of their practical experiences. Respected speaker and my council colleague, Pramod Jain Sahab, friends, a very learned and knowledgeable personality. I can say a personality of great insight and inspiration.
academically brilliant personality with fine sense of humor. He has never hesitated in sharing his pearls of wisdom emanating out of his practical experiences to the members of our professional fraternity. Friends, I can say he speaks in a style which is inimitable and truly of his own. And even a driest subject becomes palatable. His profile of resource needs no exaggeration, and with his vast reservoir of experience and knowledge, I'm sure Pramod sir will carry the profession to the new heights. I, along with the whole CIRC team, extend a very warm and cordial welcome to you, sir, in today's virtual CP meeting. Respected cheerful members of Central India Regional Council, good evening. It is a great occasion for CIRC to have endeavored to provide a platform to the entire accounting fraternity around the region to congregate at this virtual platform for deliberating upon contemporary issues of significance which touch the very edifice of our profession. Friends, I can say our profession has evolved out of economic growth and goes hand in hand with economic progress. We must all be positive in our attitude, proactive in our thinking, and progressive in our outlook. If we focus, prioritize, and aim high, I think I'm sure we'll be able to achieve our goals easily. It is often said, na, better get a stiff neck from aiming too high rather than having a hunchback from aiming too low. After all, it's not the years of our life, but life in our years that counts. And with a view to enable our members to reach newer heights, the organizers have strived hard to organize this CIRC virtual meet. Well, friends, we can say, I'll say, we all know that our profession is a highly noble, honorable, and technically and specialized profession with rapid changes. And no profession and professional can survive and compete without acquiring and updating knowledge, and then using that knowledge for economic goals. And this becomes imperative when we face competition. And for this, we'll have to redefine our position to ensure that opportunities are optimally used and we are equipped to discharge our professional functions. And so is today's topic, conversion of partnership firm and private companies into LLP, with special reference to CA firm. Devinji, I'm also delighted to know the vibrant working of CIRC and your entire team. Every passing year brings along the memories of tireless and indefatigable efforts of our senior members who have put in a lot of work and efforts with strong perseverance in the interest of the profession. So let us also remember not only the human services rendered by forefathers of the profession, but at the same time also to recognize the services today and in the subsequent years shall be carried on by all of us. So let us vouch for our professional integrity and also look into our obligation towards our society from the respect we are given, for the roles we play, and for the measures we take in the interest of society and nation. I congratulate the entire dedicated and devoted team behind this virtual CP meet. I sincerely hope that the deliberation shall be beneficial to all members and all participants shall stand highly benefited. मैं एक बात बोलूंगा कि छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, ये तकदीर अपने आप बदल जाएगी मेरे दोस्त, तू तो सिर्फ मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। और आज तो हमारे पास इतनी बड़ी वजह है, खुद प्रमोद बूब साहब जिनको हम इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, वो आज खुद हमारे पास हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उनके ज्ञान को हम सुने और उससे कुछ ग्रहण करें। Thank you, CIRC, Devinji, Dineshji, for giving me this opportunity to share my views with the members of our region. Thank you. Namaskar. Thank you, sir, for your words of wisdom. Now I request our honorable speaker, today's speaker, Pramod Jain sir, to address the audience. Thank you, Chairman sir.
the dynamic chairman Devendra Kumar Somani ji of CIRC, very energetic Dinesh Kumar Jain ji, secretary of CIRC, and the whole managing committee of the CIRC, and my very dear friend. And I have no words to say about my council colleague. We are both in the first year of the council, share the first name also, Pramod Kumar Boobji. And in fact, the energy which he possesses and the dedication, in fact, what he has and the sincerity which he has shown is unparalleled, I would say, in the council. You know, what happens that wherever I go, when they talk about council, I say, no, we have got members like Pramod Boob. What is the specialty? He is the person who says, who when he came for the first time in the council in the first year, said, I'll be in the examination committee for the whole 3 years. Where will you find the council member who says, I will be in the examination committee, I'll see that this examination system is improved? Where doing a human job. You know, just we were talking about, अभी उन्होंने बताया बूब साहब ने कि हमारे 140 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम होते थे, अभी 192 ऐड किए हैं, और हमारे पहले सेंटर होते थे अराउंड 400 around 500 something like that, and now it is nearly 1200 centers जहां एग्जाम्स होंगे. और कितनी जिद्दोजहद इस कोविड के टाइम के अंदर करनी पड़ी. कई स्टूडेंट्स को लगता है या मेंबर्स को लगता है कि इंस्टीट्यूट एग्जाम पोस्टपोन करे जा रहा है. आप ये सोचो कितनी मेहनत से वो पूरा सिस्टम को बनाना, एग्जामिनेशन पेपर सेट कराना, उसको मॉडरेट कराना, सेंटर्स के ऊपर करवाना, वो सारा काम. और जब कोई एग्जाम पोस्टपोन होता है तो पूरी एग्जामिनेशन कमिटी headed by our president, vice president, and very enably supported by Pramod Boob and Prasanna Kumar ji. You know, the way they have dedicated their time and everything and efforts and improving the system of the examination. What you are seeing that, yes, Boob Saab was specially hell-bent. No, we want that now for November 21, all examination verification, checking would be done online only. Because we know that systems could be different. People don't want that due to some reason or other. But no, he was hell-bent. No, you have said earlier time, yes, so this time we are going to have. So all exams will be checked online. So improvement, a drastic improvement. And this is the dedication of Boob. I am really very impressed by him. Because we have worked together in the FRRB also. So when we were in the FR, he was the vice chairman of the FRRB. So I worked under him and I saw that every meeting he would be there, dedicating, understanding the concepts, clarifying the issues, and in the board determining, okay, what is right, what is not wrong. So Pramod ji, really very happy to work with you and to see that you are doing a tremendous job. Friends, the topic which was ordered by the chairman CIRC on me related to the conversion of partnership firm and private limited company into LLP, limited liability partnership. मैं कुछ पूछूंगा भी और मैं रीजन भी जानना चाहूंगा कि हम क्यों, why do we want these partnerships to be converted into LLP, and especially the professional ones, why is the reason, what is the reason, what benefit we will get? First of all, let us understand the conversion process. And when we'll be going at the time of conversion process, we'll be looking into the act of the LLP where the provision for the conversion is there. And then we will go even for the taxation thereof. That if we convert, so what is the taxation upon conversion? Taxation upon conversion. So whatever practical questions you have on the conversion of a company or a partnership, we can discuss that. We will be discussing. You can just post your queries on the chat box and I'll be answering, right? So I'll just start with my मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो पहले स्टार्ट करने से पहले आ गया. Can an unregistered partnership convert into LLP? Surely yes, there is no doubt. पहले एक बार हम आपके क्वेश्चन आने से पहले LLP लॉ के कन्वर्जन का प्रोसेस समझ लें. And thereafter, if you have any questions, because if we are coming with a predetermined mind कि अच्छा ये तो ऐसे ही है,
then we won't be able to learn. So let us have certain of the provisions to understand, discuss the provisions where we can see that which all can convert into LLP and how to convert into LLP. Right? So I'm sharing the screen. Conversion into LLP and taxation, if I talk about, so let us first understand the conversion of into LLP, the 2018. First of all, why to convert a partnership into LLP? Yes, there could be certain reasons. I'll be talking about that. But why to convert a company into LLP? Because this could be a session where which could bring lots of professional avenues to all of us. कि क्या मेरे को benefit है to convert a company into LLP? Because companies at 2013, I would say lots of problems. Of course, it is effective in parts, major since 1st April 2014, and today also certain provision of Companies Amendment Act 2019 are not applicable. Companies Amendment Act 2020 is notified from 28th of September 2020. Yet the relevant provisions have not been made applicable. तो कौन सा provision applicable है, कौन सा नहीं है, कब कितने part में है, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ा confusion है. फिर yes, huge penalties and prosecution, yes, though under this Companies Amendment Act 2019 and now 20, these prosecution, criminalization, they have tried to decriminalize it. कि prosecution कम हो, penalties कम कर दें, but still at certain cases they are huge. Class suit actions are there under the Companies Act. Class suit action क्या होता है कि मान लीजिए हम auditor का ही केस लें. In case the auditor has audited a financial statement and due to which there is a loss to the stakeholders, shareholders, creditors, then to that extent, those loss will have to be borne by the auditors or any person to whom, due to which the loss has been incurred. So yes, the class suit actions are there. Penalties are there even for late filing, and I was one of the groups with the MCA जहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि एक डिफरेंस है फाइन और पेनल्टीज का, और तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि भाई ये पेनल्टीज अंडर द कंपनीज एक्ट आर नाउ all online, and the amendment has been made into the companies adjudication of penalty rules 2014, where they have made everything online. The initiation of the penalties, the answers to be taken, and even the penalties to be imposed. So everything has been done online, which has brought the companies filing a major issue. Bringing in monies made very tough. Whether it is a capital, we know that अगर private placement लाना है, 1 लाख रुपए भी लाना है, तो कितनी सारी formalities करनी है, loan लेके आना है, तो इससे ला सकते, इससे नहीं ला सकते. So bringing in monies have been made tough. Even the giving monies have been various restriction. 186 में ये resolution pass करो, 185 में डायरेक्टर को नहीं दे सकते, उनको रिलेटिव्स को नहीं दे सकते, पार्टनरशिप को नहीं दे सकते, अगर आपने दूसरी कंपनी में देना है तो उसका एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो. सो compliances are there for a company. Depreciation changes, yes. मैं अगर LLP की बात करूं या पार्टनरशिप की बात करूं या प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, वहां पे हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स करते हैं. यहाँ पर तो यू हैव टू चार्ज एज पर शेड्यूल 2. So yes, complication. LLP की मैं अगर बात करूंगा तो LLP में I can charge as per the Income Tax Act. Yes, उसके अंदर हालांकि अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट से चार्ज करता हूं तो उस केस के अंदर मेरे को अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, because the role of the auditor is different. The role of the auditor is different. He has to say that then in that case my AS10 is not complied with. But yes, still I can do that. Only one qualification is there, and then you can, for the financial statement, there would be no issue. In the companies, the specified companies, they need to have proper internal financial controls documented, and reporting on that is required by the directors in their directors report, and specified companies, auditor have to report on their internal financial controls. So internal financial controls, directors have to do in case of each company, but auditors have to do in the specified companies. Annual returns, directors report quite detailed. Annual returns के अंदर भी काफी सारी detailing है.
annexures हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट अपने आप में काफी ह्यूज हो गई है, इंपॉर्टेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव बीन मेड मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एएस और एसएस एप्लीकेबल नहीं है एलएलपी पे, है एप्लीकेबल, बट दे आर ऑन द ऑडिटर्स। इन द केस ऑफ कंपनी they are mandatory for the auditors as well as the assessee। यहाँ पे एलएलपी में या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में एसएसी कह सकता है ये एएस ऐसे मेरे को एप्लीकेबल नहीं, आपके ऊपर है, आपको जो करना रिपोर्ट में करो। बट इन द केस ऑफ कंपनीज नो, दे हैव टू, इफ दे डोंट देन वी हैव टू क्वालिफाई। कैश फ्लोज स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपकी होल्डिंग सब्सिडरी है। एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एलएलपी में कैश फ्लो हो सकता है अगर मैं लेवल 1 एएस में कवर्ड हूं, मेरी टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस हो, तो वहां पर मेरे को देखना, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। सो ये सब इश्यूज कंपनीज एक्ट के अंदर कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, कंप्लायंसेस आर टू मेनी, कंप्लायंसेस आर टू मेनी। सो यस, व्हाट इज द ईज इन द केस ऑफ एलएलपी? easy to form, easy to convert, easy to operate. As compared to a company, yes, very much. Private limited company, it can be converted into LLP, and the taxation is also easy in the case of a company, in the case of an LLP. अब taxation में कई लोग ये कहते हैं, अगर मैं कंपनी और LLP की बात करूं तो वो कहते हैं जी LLP में तो रेट ऑफ टैक्स 30%, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में 15%, और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग में 15 का 17 मान लीजिए, 17 अलॉन्ग विद सरचार्ज, और कंपनीज में अदरवाइज 25%, तो 5% का रिबेट है या बेनिफिट है, या 13% का बेनिफिट है मेरे को। बट इफ यू कैलकुलेट एंड सी, इफ यू वांट, इफ द promoters want to take the money back to their home, तो जो वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, अब हम कहेंगे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया, वेरी गुड, बट वो जो इंडिविजुअल के पास या शेयर होल्डर्स के पास जो डिविडेंड आएगा वो तो उनके स्लैब रेट पे टैक्स हो रहा है। सो उस टैक्स के, जिस प्रॉफिट पे मैंने एक बार टैक्स दिया, उस प्रॉफिट पे दोबारा टैक्स वो शेयर होल्डर देगा। एलएलपी में ऐसा नहीं। एलएलपी के अंदर जो एलएलपी ने टैक्स दे दिया, उसके बाद सारा का सारा पैसा घर में, देयर इज नो टैक्स ऑन दैट, राइट? सो दैट बेनिफिट इज स्टिल देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनीज के अंदर टैक्सेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर मैं बात करूं कि आपका 25% टैक्स होगा, 22% होगा, 15% होगा, फिर सरचार्ज से फिर मैट लगेगा कि नहीं लगेगा। हम इसमें कहते हैं इसमें एएमटी लगता है। एएमटी जो लगता है, एएमटी इज नॉट एज कंपेरेबल विद मैट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। टुडे वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दैट। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वी विल टॉक, but we will be talking about the taxation of only upon the conversion, right? Another huge benefit is when you convert a company into LLP, the carry forward losses which are there, जो कि 8 साल में खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के 7 साल थे और 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट द इश्यूज रिलेटेड टू माय कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 7 साल हो गए, खत्म होने वाले हैं, इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू एलएलपी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द कन्वर्जन व्हेन आई टॉक अबाउट, तो अगर वो आपका कंप्लायंस हो जाता है सेक्शन 47(13)(b) का, तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का नेक्स्ट फ्रेश 8 इयर्स लीज मिल जाती है। So lot of planning could be there out. Formats companies के केस के अंदर schedule 3 non compliances, we know notes to accounts, it could be Ind AS, it could be AS, you know, it is not that, suppose let us say there is a public company, unlisted public company, और उसको Ind AS applicable है, तो क्या वो कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है? हाँ, कर सकती है, मनाही नहीं है। बस अगर वो कन्वर्ट करती है तो उसके वो फॉर्मेट्स जो होंगे वो टोटली, यू हैव गॉट योर ओन चॉइस, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम फॉर्मेट और यू कैन स्टार्ट विद द normal which we do for the proprietorship partnership. So formats are not there in the LLP. In the Companies Act, the formats are specified as of now, right? Now, when we are talking about the framework for the conversion, हम
किस किस को कन्वर्ट कर सकते हैं इन एलएलपी? फर्म को कर सकते हैं, उसके लिए मेरा सेक्शन 55 है, रूल 38 है और शेड्यूल 2 है। एलएलपी एक्ट की बात करूं तो सिर्फ 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4. 1 is for my LLP agreement, 2, 3, 4 all are for conversion. So schedule 2 is for conversion of firm into LLP. In case of private limited company, section 56 is applicable, rule 39 and schedule 3. And for unlisted public company, it is section 57, rule 40 and schedule 4. एक number बढ़ाते जाए. That's all. So this is the whole framework. So simple, one section, one rule, one schedule. I have to just see that. Fine. अब हम कन्वर्जन इनटू एलएलपी की बात करते हैं तो कईयों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी कंपनी का टर्नओवर इज 2 करोड़, तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता एलएलपी में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दैट ऑल इज अंडर इनकम टैक्स। द प्रोविजन फॉर कन्वर्जन इनटू एलएलपी, द एलिजिबिलिटी इज इन केस ऑफ फर्म, मान लीजिए आप अपने सीए फर्म की बात करते हैं या एग्जिस्टिंग किसी क्लाइंट की पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, एक ही कंडीशन है कि जितने भी उसके पार्टनर्स हैं दे वुड बिकम पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड द फर्म मे बी रजिस्टर्ड बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म अंडर द विद द रजिस्ट्रार ऑफ द पार्टनरशिप is not mandatory. It may be registered, it may be unregistered. Maximum of the firms are unregistered, so there is no issue. In case of a company, only 2 eligibility. First, there should be no security interest in its assets and all shareholders become partners. ये security interest का मतलब ये है कि उसका कोई भी secured loan नहीं होना चाहिए, कोई भी charge नहीं created होना चाहिए, existing charge नहीं होना चाहिए. Now, this point was discussed recently in one of the groups in the MCA which I was there. So they said that we have amended the form where in this case with the NOC they can do. I insisted, sir, you have amended the form, but the schedule says, the act says that there should be no security interest. If you really want to do that, then you have to amend the schedule. You have to amend the act. The act would always supersede. So yes, in this case, currently the law as per act, if you see the form is different. But if you see the act, here I need to see that there is no secured loans. There can be unsecured loans, right? So मेरे को कन्वर्जन की एलिजिबिलिटी यही है, लेकिन जब मैं कन्वर्जन के फर्दर रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ से निकल के आती है, वो फॉर्म से निकल के आती है कि फॉर्म में वो क्या क्या मांगते हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो यस, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं दे हैव टू गिव द कंसेंट, तो सबकी कंसेंट चाहिए उसमें। अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न्स विद द आरओसी शुड बी फाइल्ड। जो आरओसी की कंप्लायंस है, अब मान लीजिए आज की डेट की बात करते हैं हम, आज कन्वर्जन के लिए अप्लाई करते हैं तो मार्च 19 का, क्योंकि अभी 20 की तो ड्यू डेट नहीं हुई फाइलिंग की, तो अगर हो जाएगी तो उसके बाद आपको पहले वो फाइल करनी है, उसके बाद आप आगे जा पाएंगे। सो अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न जो आरओसी में फाइल होनी है वो आपने फाइल करनी है। अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म फॉर द कन्वर्जन, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न की आईटीआर की कॉपी आपने लगानी है। इसका मतलब तो ये रहा कि अगर मेरे को किसी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को कम से कम 1 साल की आईटीआर की कॉपी लगानी पड़ेगी। दे आर इंसिस्टिंग ऑन इट। वी हैव अगेन सबमिटेड कि भाई आप आईटीआर की कॉपी क्यों लेते हो। मान लीजिए किसी ने कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट की, मान लीजिए अगस्त में इनकॉर्पोरेट की, वो आज कन्वर्ट करना चाहता है, तो अगस्त से अब तक तो एक भी आईटीआर नहीं जाएगी। Maybe a declaration can be filed, but different ROC are taking a different view. And there should be no prosecution initiated against or show cause notice for the alleged offence under the Companies Act. यहाँ पे नोट कीजिएगा, सिर्फ Companies Act है, अदर लॉज की बात नहीं, अदर लॉज की बात नहीं, राइट। फर्दर, जितने भी मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन सबकी कंफर्मेशन चाहिए।
यहाँ पर कई लोगों को इशू आ जाता है। मेरे जितने क्रेडिटर्स हैं, यानी ट्रेड पेबल्स हो गए, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गए, उन सबकी कंफर्मेशन चाहिए होगी। तो आप जब कन्वर्जन के लिए जाना चाहें, उस केस में कुछ आपको देखना पड़ेगा कि सारे क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड हैं, उन सब, क्योंकि सिक्योर्ड तो हो ही नहीं सकता ना, जो अनसिक्योर्ड है उनकी कंफर्मेशन चाहिए। एक आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी ड्यूली सर्टिफाइड एंड ट्रू एंड करेक्ट बाय द ऑडिटर। नाउ मेरे को ये शेड्यूल बोलता है, मेरे को ये फॉर्म बोलता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, बट आज शुरू में हमने स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी से ही फाइल करके कंपनीज को कन्वर्ट कराया। But now what they are saying, no, we want full balance sheet. Full balance sheet means along with the notes, the detailed balance sheet. उनके हमको शेड्यूल नंबर पे सब कुछ चाहिए. So nowadays when we are converting the company into LLP, we are giving the full balance sheet. We are giving the full balance sheet. अगर किसी भी और बॉडी की अप्रूवल चाहिए, because they say insurance company, if they want NBFC, they have to take the approval from the relevant regulator, RBI, SEBI, IRDA. प्रैक्टिकली RBI अलाउ नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी अलाउ नहीं करती, राइट, और SEBI भी लिटरली अलाउ नहीं करती। सो रेगुलेटर सिर्फ जो है कंपनी टू, अगर मैं LLP की बात करूं तो वहां नहीं होता, लेकिन हाँ अगर मेरी पार्टनरशिप फॉर्म टू LLP की बात करूंगा तो वहां पे रेगुलेटर्स हैं, लाइक अवर ICAI, ICSI, ICMI, वहां पे सब होता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, देन वील गो फॉर द प्रोसेस। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई कैन जस्ट सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी का अभी तक कोई नहीं है। सर ये जो आपने बताया कंपनी में प्रोसेस, के केस में भी सेम रहेगा? अभी आ रहा हूँ, प्रोसेस तो भी बता रहा हूँ आपको। अच्छा, प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी और कंडीशंस बताई यही है, हाँ, राइट। सीमा लोढ़ा जी का क्वेश्चन है, आई स्टार्टेड कन्वर्जन ऑफ माय पार्टनरशिप इनटू LLP टू फॉर्म पार्टनरशिप, first converted into partnership and now I want to convert to LLP, but all was rejected because of 131st March should be there. 131st March should be there because they want the ITR. कह रहे उस पार्टनरशिप फर्म की ITR की एक्नॉलेजमेंट तो लगानी पड़ेगी ना, इसलिए सीमा जी, इसलिए एक ITR के ऊपर वो नहीं जा रहा। अगेन देयर शुड बी नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट। रवि खेमका जी का है, देयर शुड बी नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सीधी सी बात है कि सिक्योर्ड लोन कोई नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं होना चाहिए ऑन इट्स एसेट्स। चार्ज तो अपने एसेट्स पे होता है तभी सिक्योर्ड होता है ना, वरना तो होता नहीं, राइट। जितेंद्र सराज जी का एक क्वेश्चन है, फर्म इज रजिस्टर्ड बट नॉट विद द लेटेस्ट पार्टनर्स, कैन इट बी कन्वर्टेड? Even Jitendra ji, even the unregistered partnerships can be converted. So when it is a say registered partnership firm, तो आपने जो latest partnership firm है, वहाँ जो आपका registered है वहाँ पे आप फाइल कर दीजिए तो आपका latest हो जाएगा वहाँ पे। LLP is act is not too much interested out there. I'll just tell you where they would require the role of the registrar of firms, right? I'll be talking about that. Siddhartha Bhadwaji, my firm is a 5-year-old proprietorship firm. Shall I form a partnership and then convert to LLP or directly form an LLP? Would the date of setup of the firm be 2015 or the date of which the LLP is formed? अच्छा, पहले हम ना एक बार यही डिस्कस करते हैं। हम लोग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करता हूँ। Why do we want to convert into LLP? What is the benefit which I am getting? What is the benefit? Please type in the chat box. जितेंद्र जी, मैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का बताऊंगा आपको रिक्वायरमेंट। आप अपनी CA फर्म को LLP में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? मेरे को एक रीजन दो। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी रिलेटेड टू व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी रिलेटेड टू व्हाट? देखिए,
collaborate with other professionals would be allowed. Collaboration with other professionals would be allowed only if the multidisciplinary partnership is allowed by the ICI, which they are in the process. Whether it is a partnership firm or LLP, both LLP हो या partnership हो, दोनों में same रहेगा, different नहीं रहेगा. No, Seema Lodaje, we cannot add other partner unless that MDP multidisciplinary is allowed by ICI. They are in the process, and that can be done even in the partnership firm. Please, merely for that purpose, you cannot, you don't, there is no need to go into LLP. Limited liability of signing, limited liability due to Other Partners Act. ये मेरा Other Partners Act और इसका क्या? Yes. What is in the LLP Act and the partnership is that the partnership says that a partner is an agent of the firm as well as with the other partner, right? LLP says that the partner is agent only of the LLP but not of the other partner. Now let us see what type of liability can arise in a CA firm. What type of liability? मान लीजिए कि आपके 10 पार्टनर है डिफरेंट सिटीज में, एक पार्टनर ने कहीं पर कोई नेग्लिजेंस की जिसके ऊपर उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगा, तो प्लीज चाहे वो एलएलपी हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, उसका मिसकंडक्ट रहेगा ही रहेगा. उसका मिसकंडक्ट रहेगा, उसकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो उसी की रहेगी. ये जो लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? ये जो मेरी जनरल लायबिलिटी है, मेरे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है, मेरे फर्म की लोन्स की लायबिलिटी है, मैं कहीं बैंकरप्सी में जाता हूं तो एवरीवन इज जॉइंटली एंड सेवरल लायबल. लेकिन अगर किसी एक्ट के अंदर है, मान लीजिए मेरा केस नफरा में आता किसी का, भगवान ना करे किसी का है, और वहां पर वो कहता है कि ये मैं फर्म को ही अलाउ नहीं करता, तो वो पूरी फर्म होगी, चाहे वो पार्टनरशिप है चाहे एलएलपी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है चाहे एलएलपी. तो अगर उसको पूरे को उसने डिबार करना है तो पूरी फर्म को करेगा. दैट पेनल्टी इज देयर फॉर अंडर दैट एप्लीकेबल लॉ, नॉट अंडर द एलएलपी एक्ट. द एलएलपी एक्ट वर्क्स जस्ट लाइक अ कंपनी, just like a private limited company. My liability towards the contribution is restricted to my contribution. मेरी लाइबिलिटी अगर मैंने कहा मेरी 10,000 रुपए कैपिटल है, 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो फर्म के अंदर एलएलपी के अंदर कभी कोई लाइबिलिटी निकल के आएगी मेरी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए. लेकिन अगर किसी दूसरे लॉ के अंदर मेरे ऊपर पर्सनली कुछ लगाया बिकॉज ऑफ माई साइनिंग, माई नेग्लिजेंस, इट वुड रिमेन ऑन मी. It will not change, right? So please understand this liability is per se is only to a limited extent. Can a firm having NRI partner be converted? Yes. Why not? LLP can have non-residents. FDI is allowed. FDI is allowed. Siddhartha ji, your question is, should I convert my proprietorship to partnership or LLP? पार्टनरशिप तो पहले करना ही पड़ेगा ना एलएलपी के लिए भी, बट एलएलपी में करने के लिए आपको बेनिफिट क्या है? आपको एक तो कंप्लायंस बढ़ रही है, तो है ना एनुअल रिटर्न, और आपको हर बार अपना एग्रीमेंट फाइल करना है, जब भी चेंज करना है, चाहे रेम्यूनरेशन चेंज करें, चाहे प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज करें, एक पार्टनर आएगा एक पार्टनर जाएगा, आपको सब कुछ कंप्लायंस करनी पड़ेगी. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एक बेनिफिट बताओ. हमारी जैसी पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर हम ना किसी से लोन लेते हैं फर्म के अंदर, ना हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं कि मैं किसी को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स दैट. अगर किसी लॉ में कोई पेनल्टी फाइन लगनी है तो लगेगी. एलएलपी कैन नॉट इन्वेस्ट इन फंड इनटू इक्विटी शेयर्स. जितेंद्र जी, अगर मेरी सीए फर्म, एलएलपी कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, बट अगर सीए फर्म की बात करूं उसको तो अलाउड नहीं है.
अनिल जवर जी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन द केस ऑफ सीए फर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, आई वाज डूइंग वन ऑफ द रिव्यूज, आई वाज देयर विद द बिग फोर्स and it was in around 2012 something. So they planned to convert into LLP. तो उन्होंने बोला जी हम इसलिए कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स बहुत ज्यादा है और पार्टनरशिप हमारे को 20 लोगों की अलाउड है। ठीक है, फिर जब हमारा चल रहा था तब तक 2013 का बिल आ गया था कंपनीज एक्ट का। मैं कहा सर प्लीज रीड द कंपनीज एक्ट बिल। द कंपनीज एक्ट क्लियरली सेज in case the firm, in case a partnership is through a regulator, is regulated by a regulator by the parliament, by the government, in that case there is no limit. Part LLP के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म भी जो CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट की है, कोई लिमिट नहीं है। यू कैन हैव 1000 पार्टनर्स इवन इन द पार्टनरशिप फर्म CA, अलाउड है। पहले रिस्ट्रिक्टेड थी, अब नहीं है। आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज नो। जितने जी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इज विद LLP, क्या बेनिफिट? सीए फर्म तो नहीं कर सकती, सीए फर्म तो नहीं कर सकती। और इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट? कैपिटल गेन अब तो वहां पर भी लग रहा है, कंपनी में भी और LLP के अंदर भी। और मान लीजिए आप कंपनी की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी के अंदर भी अगर आप 115BAA में जाते हैं तो मैट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो जो टैक्सेशन फर्म को लगना है या LLP को लगना है, सेम कंपनी को लगना है। पहले होता था कि मैट लग रहा था और कंपनीज के अंदर सेक्शन 1038 के अंदर देयर वाज द एग्जेम्पशन गिवन एंड अंडर मैट 1038 वाज एक्सक्लूडेड, सो ऑन दैट आई हैड टू पे मैट। But up to if I don't want to pay band in the company, I can go for 115BAA. So there is no issue. जितेंद्र जी, कंपनी भी कर सकती है और उसको अब कोई फर्क नहीं है। After the amendment made by the Finance Act 2020, in fact not Finance Act 2020, Finance number 2 Act 2019, वहीं पे चेंज हो गया था। वहीं पे 115BAA आ गया, मैट एप्लीकेबल ही नहीं है। जब मैट एप्लीकेबल नहीं है तो आपका कोई टैक्स ही नहीं लगना। जितना 10% टैक्स लग रहा है 112A में तो लगेगा आपको। मोनिका जी, रजिस्ट्रेशन LLP के तो होनी है। LLP को तो फॉर्म करने का पूरा तरीका है, राइट? LLP तो पूरा फॉर्म करने का है। If an unregistered partnership from 1990 converts itself into LLP, whether seniority of firm will take care. इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसका जो FRN नंबर है वो सेम रहेगा, उसकी सेम सीनियरिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। NRI वाला सिद्धार्थ जी मैंने आंसर दे दिया आपको, राइट? एनी मुझे अभी भी एक कोई अगर रीजन बताए जितेंद्र जी। मेरे हिसाब से तो सीए फर्म को तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सीए फर्म को कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, बिजनेसमैन को। आपको डिस्कस करने के बाद तो यही लग रहा है सर। नहीं मेरे से नहीं, मेरे को तो रीजन बताओ ना। सिद्धार्थ जी, सीए लिमिटेड लायबिलिटी मेजर था हमारा कंसर्न, बट आपने उसको बता ही दिया। सर लिमिटेड लायबिलिटी इज अंडर द जनरल लॉज ना। अगर कोई सेक्शन, मान लीजिए सीए एक्ट है या कंपनीज एक्ट है या नफरा है, वो कहेगा लगेगी पेनल्टी, तो लगेगी, उस लॉ में लगेगी। फ्रॉड है तो फ्रॉड है तो है, तो फिर सबको जो लगना उस मेरा अपना क्रिमिनल कोड में लगेगा, IPC में लगेगा। और मैं अगर सीए फर्म, अगर मेरी LLP सीए फर्म है मेरी LLP, और मेरे को दूसरे प्रोफेशनल लेने हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म में भी अलाउड होगा। जो मैं मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहा हूं वो फर्म को भी अलाउड होगा, LLP को भी अलाउड होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मैं सिर्फ LLP में चला जाऊंगा तो मेरे को MDP अलाउड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यस, इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ओवर इट, आई एम टेलिंग यू, बट लेट इट कम। अगर होगा तो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में भी अलाउ हो जाएगा।
नहीं, कोई और हो व्यू, आई एम वेरी ओपन टू डिस्कस। मेरे को पार्टनरशिप इसलिए सीए फर्म के अंदर बेटर लगता है कि मेरे को ना तो कोई रेगुलेशन है एमसीए का कल को एलएलपी एक्ट में कोई चेंज ले आए, कल को कहीं कुछ ऐसा चेंज ले आए हैं जहां पर मेरे को लोन लेने देने में रिस्ट्रिक्शन लगा दें, मेरे को फॉर्मेट्स लगा दें, मेरे को तो कंप्लायंस मेरे को, लेकिन एक पहले तो आई शुड नो दैट व्हाट बेनिफिट आई एम गेटिंग टू कन्वर्ट माय स्मॉल फर्म्स इनटू एलएलपी। मेरी टर्नओवर ही मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ क्रॉस कर जाए, वही बहुत है। मेरे को बेनिफिट कुछ होता हो तो जरूर कन्वर्ट करो। चरणदास जी, इन एलएलपी नो लायबिलिटी ऑफ अदर पार्टनर्स एक्ट। आज की डेट में मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, कि इन केसेस वेयर योर अदर पार्टनर हैज डन समथिंग रॉन्ग, सो इवन आज की डेट के अंदर भी क्या पार्टनरशिप के अंदर जब दूसरे पार्टनर के ऊपर डीसी होती है तो क्या पूरी फर्म को जाता है, पेनल्टी जो लगती है पूरी फर्म की होती है? नहीं होती। और कल को जब फर्म पे अलाउ करेगा द पार्लियामेंट अलाउ सीए एक्ट अमेंड करेंगे तो वो फर्म को भी करेगा, एलएलपी को भी करेगा। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। हाँ, मेरा अगर एक्टिविटी मेरी ऐसी है, लेकिन मैं अगर मान लीजिए मेरा जो मेरी एलएलपी है या मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर मैं गारमेंट्स की ट्रेडिंग कर रहा हूँ या किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, वहां पर तो एलएलपी समझ में आती है, बिकॉज I am doing business and dealing with so many persons in that way, so my liabilities could be there, right? ऐसा नहीं है कि इस I don't know. Yes, Siddhartha ji, they converted, and I'm telling you, at that time they talked to me, and they had such reason. But when I confronted, they could not give me a reason valid though. But yes, once the big four did, then the other firms also did. They still say, okay, whenever there could be an issue, they can go with the court. कोर्ट में जाएंगे, फाइट करेंगे कि हमारी लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर भी अभी भी हमने देखा जैसे कुछ केसेस के अंदर नफरा ने अगर किसी पार्टनर को बैन किया या फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई तो उस इंडिविजुअल को लगाई और वो लगेगी। उस केस में एलएलपी नहीं कह सकती, वो पार्टनर ये नहीं कह सकता कि माय कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1 लाख, सो माय लायबिलिटी वुड बी ओनली अप टू 1 लाख। नो, दैट लायबिलिटी इज अंडर द अदर लाख। If a private limited, Ruchi Gupta's question is good. It is a good question. If a private company converts into LLP, shall preference shares be partners of LLP also, or only equity shareholders? In my view, there is no clear cut in the LLP Act. But yes, what are the terms of the preference shares, whether they are redeemable or convertible? So before conversion, you please do the relevant act as per the terms. Siddhartha ji, when you're saying FDI is allowed under company or LP, yes, but no, CA firms are not. They cannot have FDI, na? Professional firms cannot have FDI. So they are redeemable. So first redeem, then they won't become the shareholders. भूमिका जी, ये आपको क्या लगता है, ये मोर देन 20 पार्टनर्स, ये कौन सा आपने, भूमिका जी का क्वेश्चन है, काइंडली प्रोवाइड द एग्जैक्ट प्रोविजन वेयर प्रोफेशनल फर्म्स कैन हैव मोर देन 20 पार्टनर्स। पहले तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट दे कहां रखी है, कौन से एक्ट में, कौन से एक्ट में, फिर मैं आपको बता दूंगा। नहीं बताऊंगा तो वैसे भी, बट जस्ट एज ए क्वेरी कि कौन से एक्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है। हाँ जी भूमिका जी, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट कहाँ है मैं बताता हूँ। नहीं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है।
कंपनीज एक्ट 1956 कहता था कि if you are having a partnership or AOP more than 20 persons, it would be invalid unless they form a company. Now the same provision has been brought under the Companies Act 2013, and this limit of 20 has been increased to 50. Further, that section 464 of the Companies Act 2013, it says, if you want, I can just read that. I'll just read that for you. क्योंकि जब ये कंपनीज एक्ट आया था तो इसके ऊपर मैंने ये चीज बोली थी. An association or partnership, if it is formed by professionals who are governed by special acts, ICI is a special act, to this section is not applicable. 464. Kindly read subsection 2 of 464. Fine. ठीक है जी. Any other question related to this? As CA in practice, what is the special benefit to form CA partnership and CA LLP, and the benefits not able to CA proprietorship firm? पुनीत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोप्राइटरशिप को कोई बेनिफिट मिल रहा है या फर्म को मिल रहा है या LLP को मिल रहा है. प्रैक्टिस के अंदर it is purely upon yourself that how do you want to do your profession. आज आप अकेले कर रहे हैं, कल को आप किसी के साथ करते हैं, तो 2 लोग 4 लोग मिलके कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप बनाते हैं, वरना एज ए इंडिविजुअल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट 2-4 लोग मिलके कराते हैं तो यस, अगर मैं प्रैक्टिकल एंगल से जाता हूं तो आप जो एम्पेनलमेंट करते हैं एमईएफ में, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, देन यू गेट व्हाट यू कॉल इज योर एमईएफ के अंदर रैंकिंग हायर, कैटेगरी 1 2 3 4. सो एम्पेनलमेंट, बिगर फर्म, दैट्स व्हाई. And in my view, whether it is a partnership or LLP, no difference under the MEF, please. No difference on the MEF, please. Right? Sanjeev Meshri ji ka question hai, after applying for bank branch audit, whether the firm can be converted into LLP, what would happen to the application by partnership firm? Whether firm can do the branch audit in the new LLP? In my view, yes, you just need to intimate that banker that my firm name has changed from this to this, because your FRN number would remain same. So in their empanelment, you have to say that my name has been changed to LLP. Right? At the time of conversion, companies having reserve and surplus, then who will pay dividend, company or LLP? Companies converted in the financial year 2021. आपने जब कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर लिया, after that company is not there, so there is no question of dividend. That Sushil ji, we will come with the point when we are talking about my taxation. Right? So now, going with the basic concept of understanding what does a partnership firm or LLP has a benefit. LLP has a benefit over LLP. For a CA firm, in my personal view, there is no major benefit. Only the compliances are increasing. Only the compliances would increase. They would not get any benefit into empanelment or MEF. Yes, partners अपने चूज सही तरह से करो, क्योंकि जितनी बार आप पार्टनर चेंज करेंगे, आपको एडवांस में अपना एग्रीमेंट बना के अगर LLP बनाते हैं तो आपको फाइल करना पड़ेगा. So you have to be very careful. Right? So I'm further again sharing my presentation further. The process of conversion of first company into LLP. You know, first of all आप प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सिक्योर्ड इंटरेस्ट है, मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने 1 साल की ITR फाइल कर दी, मेरे को इनकम टैक्स का क्या बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा. All those things I have to see. And then you have to go and obtain the DIN and DSC for the designated partners. क्योंकि हो सकता है कि आप जो आपके अभी डायरेक्टर्स हैं, आप उनके अलावा किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहें, तो आपको उनके DIN और DSC लेने पड़ेंगे. Then you have to obtain the name. The name approval आपका होगा through Run LLP. और जब Run LLP के अंदर आप
नाम लेंगे, रन एलएलपी के अंदर आप अपना नाम लेंगे, ये मेरे ख्याल से प्रोसेस है फॉर द इनकॉर्पोरेशन, ये कन्वर्जन का नहीं है। आपने पहले जिसको पार्टनर बनाना है, मैं कन्वर्जन का नेक्स्ट स्लाइड में जब फर्म का बताऊंगा तो कंपनी का साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। वो स्लाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट की थी, तो उसमें एक स्लाइड जो कंपनी की थी मिस हो गई। ये प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन है शायद। नेम अप्रूवल लूंगा रन एलएलपी के अंदर, उसके बाद मैं फॉर्म फिलिप फाइल करूंगा। पहले ये होता था फॉर्म 1 और ये होता था फॉर्म 2। अब मैं नेम अप्रूवल लूंगा, यहां से फॉर्म फिलिप लूंगा और उसके बाद ये कन्वर्जन का ही है, सॉरी कन्वर्जन का ही है, कंपनी का ही है, ठीक है। मैंने नेम अप्रूवल लिया तो मेरा कंपनी का अगर नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो उसका नाम हो जाएगा एबीसी एलएलपी। और इसके साथ जब मेरे को नेम अप्रूव हो गया, नॉर्मली हो जाता है, पीछे तो आरओसी ने कुछ मना कर दिया था, जबकि कोई ऑब्जेक्शन लगाते थे, हम कहते थे भाई कंपनी तो है ऑलरेडी, सब कुछ एग्रीड तो है। तो यस, यहाँ पे मैं नेम अप्रूवल लिया, नेम अप्रूवल के बाद मैंने फॉर्म फिलिप और उसके साथ फॉर्म 18 कन्वर्जन का भरना है। ये दोनों सब फॉर्म इकट्ठे जाते हैं। इसके अंदर जो हमने अभी बात की थी वो सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, आईटीआर की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो कि आजकल बैलेंस शीट है, सारे शेयर होल्डर्स की कंसेंट, ये सब इसके साथ जाते हैं। देन ऑफ कोर्स आपका ये फॉर्म मेरे जब अप्रूव हुए तो मेरी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी एलएलपी में द सेम डे, जैसे ही आपका कन्वर्ट हुआ। बट यहाँ पर मेरा काम खत्म नहीं होता। ये फॉर्म 14 अभी फाइल नहीं करना कंपनीज के केस के अंदर, पहले फाइल करना था, अब नहीं करना। ये अक्टूबर 2015 से खत्म हो गया। और उसके बाद मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को फॉर्म 3 फाइल करना है फॉर एलएलपी एग्रीमेंट। आई हैव टू फाइल दिस फॉर्म बिकॉज कन्वर्जन का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, उसके बाद मेरे को स्टिल आई हैव टू फाइल दिस एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म 3। और ये एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है, ये मेरा हालांकि कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है किसी भी स्टैम्प एक्ट के अंदर, but they are taking the same stamp duty which is there for a partnership deed, same stamp duty। उसी स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रॉपरली आपने नोटराइज करा के फॉर्म नंबर 3 फाइल करना है। और मैं अगर प्रोसेस फॉर द प्रोफेशनल्स की बात करूं, यानी प्रोफेशनल के तो पार्टनरशिप फर्म होंगे, तो उनके लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लानिंग के मेरे को बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, किसको बनाना डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसका आपको डिन विन सब लेना पड़ेगा। सबसे पहले जब आपने प्लानिंग की, उसके बाद अपने सीए इंस्टीट्यूट से आप अप्रूवल लेंगे, आई वांट टू कन्वर्ट वेदर दिस नेम वुड दिस बी अलाउड और नॉट, सो ऑब्टेन दैट प्रायर अप्रूवल बिकॉज यू नीड टू फाइल दिस विद द फॉर्म। देन you will have to obtain the DIN and DSC for the DPs, क्योंकि मेरी पार्टनरशिप फर्म है तो मेरे पास उनका हो सकता है DIN ना हो सकता है DSC ना हो। एलएलपी एक्ट में अभी भी वो DPIN बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो है लेकिन DIN के थ्रू सारा प्रोसेस, राइट। फिर आप आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस यू विल अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल इन द रन एलएलपी। ये फॉर्म का नाम रन एलएलपी, पहले फॉर्म 1 था, एंड देन यू हैव टू फाइल फॉर्म फिलिप which was earlier form 2 along with form 17 here। यहाँ पे form 17 जाता कन्वर्जन के लिए। और जब हमारे ये दोनों फॉर्म अप्रूव हो गए तो मेरी फर्म कन्वर्ट हो जाएगी एलएलपी में। और जब कन्वर्ट हो जाएगी तो मेरे को एक फॉर्म 3 फाइल करना है एलएलपी में, और मेरे को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को, जो सीए इंस्टीट्यूट उसको इन्फॉर्म करना मेरे नाम अप्रूव हो, मेरे एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगा, ये कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर एक और मिसिंग है, अगर मेरा रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स है, वहां पे मैं रजिस्टर्ड हूं, तो वहां पर मैनुअली मैंने ये फॉर्म 14 फाइल करना है, फॉर्म 14 वहां पे फाइल करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम दिस कन्वर्जन। अगर मेरी फर्म रजिस्टर्ड है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, तो फॉर्म 14 रजिस्ट्रार के पास फाइल करना विद इन 15 डेज। रजिस्ट्रार का रोल यहाँ खत्म, फर्म उसको इंटीमेट कर दिया कि अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरा, अब मेरा रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास होगा, एमसीए के पास। यहां तक का कोई क्वेश्चन? देन आई विल गो विद द फर्दर कंप्लायंसेस। एलएलपी में मैंने आपको बताया, जितेंद्र जी आपने कहा कि कंपनीज के अंदर रेट कम है, एलएलपी में भी कम हो जाएगा। आई डाउट, बिकॉज कंपनीज के अंदर अभी भी डबल टैक्सेशन है। कंपनी पहले टैक्स देती है एंड देन द शेयर होल्डर्स गिव।
LLP में ऐसा नहीं है, LLP और पार्टनरशिप फर्म के अंदर इट इज सेम. Can an individual get separate assignment in his individual name if he is partner in partnership firm? सेपरेट असाइनमेंट, अब आप अगर दो जगह पार्टनर हैं तो आपको काम दोनों जगह आप ले सकते हो, आप दोनों जगह आप वो है, लेकिन जब आप MEF में फाइल करेंगे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता कि आप दो जगह काम कर रहे हैं. राइट? मैं आपको PPT के बारे में बता दूंगा सर, डोंट वरी. फर्दर नाउ, जब मेरी ये कंपनी कन्वर्ट हो गई या LLP फर्म कन्वर्ट हो गई LLP में, देन एवरीथिंग वुड कंटिन्यू. व्हाट माय प्रॉपर्टी, जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, सब कंटिन्यू करेगी उस कन्वर्टेड LLP में. जो मेरी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेंगी. ये नहीं कि कंपनी थी या फर्म थी तो खत्म हो जाएगी, सब कंटिन्यू रहेगी इसके अंदर. मेरा जितना कन्विक्शन है, जितना रूलिंग है, जितना ऑर्डर है कि वो उसके नाम से था, प्राइवेट लिमिटेड या सिर्फ फर्म के नाम से, अब LLP के नाम से है, इट विल ऑल कंटिन्यू, इट विल ऑल कंटिन्यू. जितने मेरे एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एवरीथिंग वुड कंटिन्यू. मेरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कंटिन्यू रहेगा. ऐसा नहीं है कि मेरा जो 5 साल की ग्रेजुएटी है, 3 साल वहां था, मैंने कन्वर्ट करा लिया तो मेरे यहाँ पे 2 साल काउंट होंगे. नो, रिमेनिंग 2 years वो 3 years काउंट होंगे. इट विल कंटिन्यू. पोस्ट कन्वर्जन ये ध्यान रखना है आपने, that the notice of conversion is to be made for 12 months from the date of conversion in all official correspondence. क्या क्या देना है आपने? That it has been converted from a company to LLP, and you have to give the name and SIN number of the erstwhile company. जितनी भी है वो 12 महीने तक आपने देनी है. प्लस नोटिफाई आपने करनी है हर एक अथॉरिटी को जिसके पास भी जो है कि भैया मेरी ये कंपनी के नाम से LLP में. And same thing is there with my partnership firm also. बैंक अकाउंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, जो भी है सब जगह आपने इंटीमेट करना है जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज प्रैक्टिकल. इसमें टाइम लिमिट नहीं दे रखी. जो नोटिफाई आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, सबको आपने बताना पड़ेगा कि नाम चेंज हो गया. राइट? अगर आपका GST नंबर है वहां आपने कन्वर्जन कराना है, IC कोड है वहां पे आपने नया लेना पड़ेगा. तो जहां जहां आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो कंपनी है चाहे LLP, आपने सब कुछ चेंज कराना है. कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो कि हम समझ लें, जो कि क्वेश्चंस जो मेरे को बहुत सारे आए, मैं उसके बेस के ऊपर मैंने ये बनाए हैं. अब ये बैलेंस शीट कंपनी की बनेगी या LLP की बनेगी फाइनेंशियल ईयर के लिए? मान लीजिए एक कंपनी LLP में कन्वर्ट हुई, मान लीजिए वो कन्वर्ट हुई मेरी, मैंने एक जो स्टेटमेंट एसेट और लायबिलिटी लगाई थी वो लगाई थी 1 अक्टूबर 2020 की, और कन्वर्जन हुआ मेरा 23 अक्टूबर 2020 को. तो ये 22 अक्टूबर तक, कन्वर्जन 23 को हो गया, तो 22 अक्टूबर तक ये कंपनी थी और 23 अक्टूबर के से लेकर 31 मार्च तक ये LLP है. तो 2 स्टेटस है. तो इसका अलग बैलेंस शीट बनेगी, इसकी अलग बैलेंस शीट बनेगी. इस डेट से कोई लेना देना नहीं है जिस तारीख तक की मैंने स्टेटमेंट एसेट लायबिलिटी लगा के फाइल की थी. जिस तारीख को कन्वर्ट हुआ उस तारीख से LLP है. उससे पहले की डेट की कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद की LLP की बनेगी. 2 बैलेंस शीट होगी. राइट? IT रिटर्न्स भी 2 जाएंगी, एक कंपनी के अलग, LLP के अलग. एक नहीं जाएगी. इसके सारे बैलेंसेस कन्वर्ट होकर इसमें आएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस. ऑडिट ऑफ द कंपनी होगी कि नहीं होगी? आप बताइए. ये मेरी कन्वर्ट हुई तो ऑडिट ऑफ द कंपनी होगी कि नहीं होगी? ये मेरी कंपनी कन्वर्ट होगी LLP में, मैंने अभी एग्जांपल दिया 23 अक्टूबर को हो गई, होगी. सब कह रहे हैं ऑफ कोर्स. अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ सर, जब ये कंपनी कन्वर्ट हो गई LLP में, उसके बाद मान लीजिए ये कन्वर्ट हुई 23 अक्टूबर 2019 को, आप आज ऑडिट कर रहे हो, डू यू होल्ड दैट ऑफिस ऑफ द ऑडिटर? क्या उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? क्या उसके शेयर होल्डर्स हैं? आज आप कुछ भी कर रहे हो उस कंपनी का, तो क्या कंपनीज एक्ट में कुछ कर सकते हो क्या? वो तो कंपनीज एक्ट में कंपनी ही नहीं रही.
कंपनीज एक्ट में तो वो कंपनी नहीं रही, वो तो 22 अक्टूबर को खत्म हो गई। वो 22 अक्टूबर को खत्म हो गई। आपके पास, यू आर नॉट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी राइट नाउ। देयर इज नो ऑफिस ऑफ द ऑडिटर, देयर इज नो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, देयर इज नो शेयर होल्डर्स। आप आज कर रहे हो तो कंपनी एक्ट में तो ऑडिट नहीं होगा ना। प्लीज अंडरस्टैंड, कैसे करेंगे? कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई एजीएम नहीं होगी। एजीएम किसकी होगी? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स है कहां? डायरेक्टर्स भी नहीं है। को नया जीएसटीएन आएगा, बट वो कन्वर्ट होकर सारा का सारा क्रेडिट होकर चला जाता है। दैट प्रोविजन दे हैव मेड, राइट? सो आपको ये करना पड़ेगा। ये एसेट्स जितनी भी है, कार, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल प्रॉपर्टी, प्लीज एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसफर्ड। और हम जब भी अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जिस कंपनी के अंदर या पार्टनरशिप या जहां पर भी मेरा इमोल प्रॉपर्टी है, प्लीज हम स्टैम्प ड्यूटी वाली की कोई गारंटी नहीं लेते। स्टैम्प ड्यूटी कन्वर्जन पे लगेगी कि नहीं लगेगी, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यू चेक योरसेल्फ, वी डोंट नो। जिस चीज के बारे में हमको ना पता हो, प्लीज उसके कभी भी काम मत लें। बोलो जी इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, आपने वो ले लिया और गलत बता दिया तो रेपुटेशन खराब होती है सीए की। बेटर स्टाफ बोलोगी मुझको नहीं पता, आप अपने लेवल पे पता कर लो। डोंट टेक गारंटी ऑफ द थिंग्स व्हिच वी डोंट नो, दिस विल एनहांस आवर रेपुटेशन, राइट? सो एनी क्वेश्चंस up to this point? Yes, if during this period the company's turnover exceed 1 crore, we have to do tax audit. Yes, you have to do tax audit and issue 3CB, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो ऑडिट होना नहीं। आईटी रिटर्न फाइल करनी है। अगर मेरी 1 करोड़ 5 करोड़ जो भी मेरी कंडीशन है वो क्रॉस करती है तो मेरे को 44AB में ऑडिट करना पड़ेगा। या वी विल साइन एज पास्ट डायरेक्टर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरावगी जी, जितेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पास्ट डायरेक्टर साइन करना पड़ेगा। जैसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होते हैं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वैसे पास्ट डायरेक्टर करके साइन करना पड़ेगा। Right? Any questions up to this point, please? जितेंद्र जी, नो लाइबिलिटी ऑन पास्ट कंपनी, ऐसा नहीं है। पास्ट कंपनी की जितनी लाइबिलिटी थी सब कैरी फॉरवर्ड हो गई इस एलएलपी के अंदर। ऐसा जितेंद्र जी कहाँ है? अभी हमने कंडीशन पढ़ा कंपनीज एक्ट, एलएलपी के अंदर ऐसा कहीं नहीं है। एलएलपी एक्ट में हमने कंडीशंस पढ़ी। बिफोर आपने कहा कन्वर्जन फ्रॉम कंपनी टू एलएलपी, देयर इज अ कंडीशन दैट टर्नओवर शुड डोंट, वो एलएलपी एक्ट में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। प्लीज, कोई नहीं है फॉर फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। यू कैन कन्वर्ट इवन इफ योर टर्नओवर इज 1000 करोड़। एलएलपी एक्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। प्लीज, तभी मैंने कहा था कि आप पहले कंडीशंस पढ़ें, प्लानिंग करें, because what you are saying is there, it is there in the income tax act. No, Pratibha ji, the question is turnover calculation after conversion. No, up to the date of conversion company, after that LLP. Sonam ji, मैंने आपको बताया कि when there is no benefit because they had started the process even before the Companies Act 2013, because this LLP Act came, though it is 2008, but they 2009 they started doing it, na? Because they wanted number of partners to be more and they had in their mind this limited liability. But when I talked to them कि limited liability समझाओ, they could not explain to me. They still thought that because their activities are so complex and so multi-varied and they
have so many further loans and all those things. So in that case, but professional liability would be there on the specific partner only. In that case, it cannot be there on the whole firm or other partners. आपके दूसरे पार्टनर ने गलत किया, आपके ऊपर ना सीए एक्ट के अंदर ना कंपनीज एक्ट के अंदर कोई लाइबिलिटी आएगी. After conversion, the question is, after conversion, company don't have to file balance sheet or AR. सर कैसे करो कि कंपनी है ही नहीं आरओसी की साइट पे, कंपनी रही नहीं, एजीएम कैसे हो जाएगी? सर एजीएम होगी उसके बाद ही तो फाइल करते हैं ना. एजीएम शेयर होल्डर की होती है, जब वो कन्वर्ट होगी तो शेयर होल्डर का है, बोर्ड का है, बोर्ड अप्रूव करते हैं ना, बोर्ड का है. आप चाहोगे करने के लिए तब भी नहीं कर सकते. हमको चीजें साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ देखना पड़ेगा ना. लीगली नहीं कर सकते, और लीगली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ है ही नहीं, कैसे करोगे? Right now let us go. अनुराग काल जी एक क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट कंटीजेंट लायबिलिटीज? एवरीथिंग वुड कंटिन्यू. बिजनेस प्रोफेशन व्हाटएवर इज देयर, इट विल कंटिन्यू प्लीज, इट विल कंटिन्यू प्लीज. अभी हमने बताया एवरीथिंग वुड कंटिन्यू. सो लेट अस गो इनटू टैक्सेशन. अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जो रिस्ट्रिक्शंस बताई, उसमें ऐसी कई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. रिस्ट्रिक्शंस चालू हुई मेरे एलएलपी एक्ट में, मेरे इनकम टैक्स एक्ट में, सॉरी. क्या रिस्ट्रिक्शन आए? और कन्वर्जन के लिए बहुत सारे प्रोविजंस आए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज 4713B. राइट, एंड देन 47A4. वो हम आगे आएंगे, ठीक है. कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड, अब पार्टनरशिप टू एलएलपी के अंदर इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन है ही नहीं. क्यों नहीं है? वो कहते हैं पार्टनरशिप एंड एलएलपी से बंदा सेम थिंग. उन्होंने जब पार्टनरशिप और एलएलपी का टैक्सेशन की बात कही, तो उन्होंने जो पार्टनर की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में, उन्होंने कहा पार्टनर इंक्लूड्स पार्टनर ऑफ एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो वन एंड द सेम थिंग ना. तो कहते हैं इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं आया. तो सेम एवरीथिंग. अगर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होती है एलएलपी के अंदर, उसका एक ही साल रहेगा, सेम पैन रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा. Right, so the taxation aspect is to be seen only in case of conversion of company into LLP. From partnership to LLP, there is no change. So conversion of a private limited company or unlisted public company into LLP, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है दो चीजों का, एक तो कंपनी का और दूसरा शेयर होल्डर का. क्योंकि शेयर होल्डर ने तो 1 लाख रुपया लगाया था ना, उसके अगेंस्ट उसको रिजर्व सरप्लस का भी तो पैसा मिल रहा है. उसको हो सकता है मैं एलएलपी के अंदर पैसा रखूं, बट इट इज क्रेडिटेड टू हिम ना, ही इज द ओनर. सो ऑन द कन्वर्जन, the capital gain both on the private limited company and the shareholder would be exempt if these following conditions are met. सारी conditions, एक भी मिट नहीं होती तो out. क्या conditions है? First, सारी asset and liability of the company becomes the asset and liability of the LLP. ये तो बनेगी, इसमें कोई doubt नहीं है. The shareholders of the company become the partners of the LLP in the same proportion as the shareholding in the company. ये भी हम कर लेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है. ये दो हो गए. Next, C, no consideration other than share in profit and capital contribution in LLP arise to the partners. ये भी होगा क्योंकि at the time of conversion है ये. After conversion करने के बाद आप जो मर्जी करो, but जब मैं convert करता हूं तो सिर्फ share in profit and capital contribution होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. ये भी हो जाएगा, not a big deal. यहां से मेरे को ध्यान रखना है, पहली 3 कंडीशन में नहीं है, लेकिन बाद की 4 कंडीशन में है. The erstwhile shareholders of the company continue to be entitled to receive at least 50% of the profits of the LLP for the next 5 years. 5 साल तक मेरे जो existing जो conversion के टाइम पे partners हैं, they should continue to hold at least 50% of the profits in that LLP for the 5 years. अगर किसी भी बाद के साल के अंदर अगर आपने पार्टनर से चेंज कर लिए, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा कि जिस साल में आपने चेंज किए, तो जो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट मिला, वो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा. राइट.
टर्नओवर डू नॉट एक्सीड ₹60 lakhs in any of the 3 preceding years. ये इनकम टैक्स में है, LLP एक्ट में नहीं है. You can convert. The only thing is there would be capital gain. Now there could be a case where you want to convert into a company into LLP and still pay capital gain tax because it is still beneficial. So it is not a plain vanilla. It would depend upon case to case whether to convert into LLP or not. So here lies your professional acumen. Further, another condition they have added that 2 conditions more, that no amount is paid either directly or indirectly to any partner out of accumulated profits of the company for a period of 3 years. एक क्वेश्चन था कि भाई मेरा रिजर्व सरप्लस का क्या होगा. आप वो जो रिजर्व सरप्लस में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो 3 साल तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कर सकते हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो नहीं कर सकते फॉर 3 ईयर. करेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया, जिस साल में आपने किया उस साल आपका टैक्सेबल हो जाएगा. एंड अनदर कंडीशन जो उन्होंने ऐड कर दिया फाइनेंस एक्ट 2016 से, टोटल एसेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट फेयर मार्केट वैल्यू not exceed 5 crores in any of the 3 preceding years. Do not exceed ₹5 crores in any of the. तो ये मेरी कंडीशंस मीट आउट होती है तो मेरे को कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. मैं कन्वर्ट तो फिर भी कर सकता हूं. मान लीजिए मेरी ये एसेट्स है 100 करोड़ और मुझे लगता है कि मैं एलएलपी में कन्वर्ट कर लूं फिर भी मुझे बेनिफिशियल है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कन्वर्जन में दिक्कत नहीं है, राइट. फर्दर कन्वर्जन में उन्होंने क्या क्या चेंज किए. जो चीज भी कंपनी को जैसे अलाउ होनी थी वो चीज अब उस एलएलपी को अलाउ होगी. जितना मेरे को प्रीडिसेसर कंपनी को एग्रीगेट डेप्रिसिएशन मिलना था सक्सेसर को उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. यानी हम एसेट्स की वैल्यू बढ़ा के नहीं कर सकते, करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन उतना ही मिलेगा. आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स अगर 35 एडी में है, अगर उसको नील था तो यहां पर भी नील रहेगा. मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स जो मेरा WDV उस कंपनी का था सेम रहेगा, बुक्स वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में तो मेरा डेप्रिसिएशन डिफरेंट होता है और कंपनी से केस में और इनकम टैक्स में डिफरेंट होता है. कहता है सब कुछ जो इनकम टैक्स के हिसाब से चल रहा था सब कुछ सेम रहेगा. 47A4 जो मैं कह रहा था, in the conditions, if the conditions section 4713B are not complied with, the benefit availed by the company shall be deemed to the profit of the successor LP in the previous year in which the requirements are not complied. Right? Cost of acquisition of the capital asset of the successor LP same रहेगा. आप उसको अगर इन्फ्लेट करके लेते हैं तब भी इसका इस सेक्शन में सेम कॉस्ट मानी जाएगी. 35DA में अगर मेरा VRS जो है वो 5 साल के लिए लागू होता है, 5 इयर्स के लिए. वो कहते हैं 2 साल आपने वहां ले लिया कंपनी में तो 3 साल यहाँ ले लो. 35D में चेंज नहीं किया, जहां पे मेरा प्रीमियम एक्सपेंसेस है वो भी 1/5 मिलता है ना 5 साल के लिए. वहां पे अगर कंपनी को ही मिलेगा, LLP को नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया उन्होंने. ये जो मैं आपको कह रहा था 72A6A, carry forward and set off of business loss and of depreciation allowed to the successor LP, fresh 8 years lease, because these unobserved depreciation तो current year का ही होता है. ये मेरा carry forward of business losses जो हैं they would be treated as business loss for that year, right? हाँ, कन्वर्ट करूंगा तो मेरा जो 115J अगर मेरा कोई मैट का क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा. अभी तक यहाँ पर किसी के अब कोई इनकम टैक्स में क्वेश्चन, इनकम टैक्स के सिर्फ यही प्रोविजन है कन्वर्जन के. सर राजी फजरस जी का क्वेश्चन है व्हाट अबाउट सिबिल. सर सिबिल में तो असेसी का ही जाएगा, वो सिबिल में कन्वर्जन पे अपने आप हिसाब से चेक कर लेंगे. फिफ्टी परसेंट प्रॉफिट कंसेप्ट क्या है रुचि जी? 50% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपके 4 शेयर होल्डर थे कंपनी के अंदर, आपने वो कन्वर्ट की कंपनी एलएलपी के अंदर.
तो वो 4 शेयर होल्डर जो हैं दे शुड होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो फॉर द नेक्स्ट 5 years. If not, then again 47A4 would be applicable. Liability would depend, जितेंद्र जी, upon case to case. मान लीजिए अगर आपका 4713 भी एप्लीकेबल नहीं होता, मान लीजिए इसके अंदर आपकी मान लीजिए कि आपका इस केस के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट? आपने इसको कन्वर्ट किया एलएलपी के अंदर और आपकी टर्नओवर थी 70 लाख रुपए, तो आपको 4713A भी नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर इसको ट्रांसफर माना जाएगा। अब कंपनी ने एलएलपी को ट्रांसफर किया, व्हाट डज दैट मीन? 50C एप्लीकेबल हो गया, सर्कल रेट पे आप टैक्स दे दो। या मान लीजिए आपने 4713B शुरू में तो कंप्लाई किया, लेकिन बाद में आपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 50% के ऊपर चेंज कर दी, या आपने एक्यूमुलेट प्रॉफिट 3 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फिर वो आपको जिस साल में आपने किया उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। यस, रुचि जी का क्वेश्चन है, व्हाट इफ वन पार्टनर रिजाइंस, कैन रिमेनिंग पार्टनर्स होल्ड 50% टुगेदर बाय अमेंडिंग एग्रीमेंट? यस दे कैन, yes they can. Any further question? I can take 1 or 2 case studies then, क्योंकि आपका एलएलपी से इससे रिलेटेड, क्योंकि मेन है आपके कोई भी क्वेश्चंस है वो कंसेप्ट्स, मतलब कि that should be cleared. One question sharing a case study. आप बोल दो सर, केस स्टडी अगर आप बोल दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो केस स्टडी आप इसमें टाइप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चेयरमैन सर जितेंद्र अग्रवाल जी को, सुशील अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, कैन अ सीए बिकम अ स्लीपिंग पार्टनर इन एलएलपी इन व्हिच अदर आर पार्टनर्स हु आर नॉट सीए? नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वो तो एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म वन एंड द सेम थिंग मानते हैं ना, ओनली द लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट इज देयर एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ऐड किया, बाकी सब कुछ तो वही है। सो अनदर एलएलपी। तो सुहानी साहब, आप जितेंद्र अग्रवाल जी को अनम्यूट कर सकते हैं। जितेंद्र अग्रवाल जी ने हैंड्स रेज करिए सर, तो मैं आपको अलाउ करूंगा। हाँ, आप बोलिए सर। Am I audible? यस सर, यस यस, सर नमस्ते सर, एक स्मॉल क्वेश्चन। एक कंपनी एक्स है जिसका 50 लाख का फॉर एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड लॉस है, एंड इट इज हैविंग वन प्रॉपर्टी से वैल्यूएशन ऑफ 1 करोड़ रुपीस सर्कल रेट। सर उसकी जस्ट अब कंवर्जन हम कर रहे हैं, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हाउ द टैक्स लायबिलिटी इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड इन दैट केस अंडर सेक्शन 50C व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ। आप ये देखो, आपका उसका मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन कितना होगा? Say my book say circle rate is 1 crore and my book value is 50 lakh rupees. Cost of indexation देखे से 80 lakhs 20 lakhs का आता है, तो क्या 20 lakhs पे टैक्स लगेगा? हाँ, 20 लाख पे टैक्स लगेगा ना, सर क्योंकि इसमें बिजनेस ये लॉस तो कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा नहीं ना। हाँ सर, कैरी फॉरवर्ड तो बिजनेस लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट होता नहीं है ना, एडजस्ट होगा नहीं। हाँ एडजस्ट होगा नहीं सर। तो उस केस में से टैक्स प्लानिंग करनी, उस केस में टैक्स प्लानिंग करनी पड़े क्लाइंट को, व्यवस्था है सर, या जब कंडीशन फुलफिल करा के ट्रांसफर। हाँ सर, पूरे फैक्ट्स देख के उसके बाद एक कॉल लेनी चाहिए। ओके
बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. अगर एक चीज भी कहीं गलत हो गई तो पूरा लेना का देना पड़ सकता है. ओके. कोई भी केस हो तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यस व्हाट कुड बी द कन्वर्जन हो जाएगा एलएलपी में, बट टैक्सेशन एंगल प्लस अदर स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर थिंग्स आई हैव टू सी. ऐसा ना हो कि मैं टैक्स प्लानिंग या कन्वर्जन या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाऊं और मेरे को टैक्स का ह्यूज अमाउंट पड़ जाए या मेरे दूसरे चार्जेस इतने हैवी पड़ जाएं वो असेसी संभाल ना पाए. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. Okay, Right? got your point. Got your point. Okay, sir. Thank you. थैंक यू. रवि खेमका जी का एक और क्वेश्चन है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बी कन्वर्टेड टू एलएलपी इज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेस देन 20% and directors are common in both the company, whether it will impact the taxability or else. Investment book value is 12 lakh but market value is more than 5 crore. If 4713B are complied with, then there would not be any issue. If 4713B is not complied with, then there would be an issue because it would be treated to be the transfer, and when it is treated as transfer, 50 CA would come into picture. So buyer seller both would be having an issue. Buyer seller both would be having an issue. 50 CA भी लग जाएगा और 56 to 10 भी लग जाएगा. So I have to be very careful. So I have to see so many things before converting. ठीक है. Any other question? चलिए एक तो अब इसमें हम अपने केस स्टडीज देख लेते हैं एक दो. And case studies only in relation to conversion of company to LLP. A or B, they both are shareholders in ABP Private Limited. AB company is eligible for Section 10A, right? Company is converted into LLP. AB LLP हो जाएगी. Assets are transferred at their respective fair value. Conditions of Section 47 exemptions are met. Now the question is, what are the implications of conversion of this company into LLP? Can AB LLP avail the 10A benefits? क्या ये avail कर सकती है? क्या what are the tax implications for the shareholders who become the partners? जो shareholders हैं, yes, उसके लिए तो 4713B में include कर दिया कि if 4713B is complied with, 47 are met, then shareholders के पे कोई taxation नहीं है. ABP LLP के लिए yes, it would be allowed because 10A is undertaking specific, not SSC specific. So change in ownership does not impact the allowability of the deduction. Several judgments are there. Let us take another question. Another issue. One section 222C के अंदर dividend includes this. But I'll not discuss this out here because ये थोड़ा सा controversial है, so I'll not discuss out this. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. इसमें जतेंद्र जी आपका क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ आ जाएंगे. एक ये ABC प्राइवेट लिमिटेड है. ये कन्वर्ट हुई ABC LLP में असेसमेंट ईयर 13-14 में. The company apart from other had shares and reserve surplus of 3 crores. This LLP gave interest-free loan of 50 crores to partners in the same proportion as shareholding in the company on the date of conversion. Same proportion में उसने interest-free loan दे दिया. LLP तो दे सकती है, कंपनी को मनाई है ना. LLP में क्या इश्यू है? ABC LLP also sold the shares and treated that as long-term capital gain. Convert करने के बाद AO treated the said as transfer taxable, being violative of proviso C and F to 4713B and applicability of 47A4. कहते भैया ये सारा कुछ taxable है. Now here, what they did was this, that they give interest-free loan. तो ये था ना कि आपको रिजर्व सरप्लस अगले 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गया. तो यहां पर अब बात हुई कि अब क्या करना है.
यहां पर सबसे पहले कई सारे क्वेश्चंस आए. Is the transaction violating proviso C to section 4713B that the shareholders are receiving something else other than the share in profits? The court held no. सिर्फ प्रॉफिट ही मिला. तो सी तो मेरा प्रोविजो जो 4713B का है वो वायलेट नहीं हुआ. Then the further question was asked, is it a violation of proviso F to section 4713B, that is transfer of accumulated profit directly or indirectly? They said yes. Now the question came, is section 47A4 applicable? Yes, it is applicable. No, it is not applicable. 47A4 is not applicable. Why? Because they say 47A4 is applicable. It is taxable. But is transfer of assets from company to LLP taxable? वो शेयर जो थे उन्होंने कहा no. ये उल्टा आ गया. They say yes. लेकिन what would be the consideration? The consideration से book value, इसलिए कोई ट्रांसफर नहीं आया नेट. बट उस वक्त जब ये बात हुई थी उस वक्त सेक्शन 50CA नहीं था. अब 50CA आ गया. तो now this would change, right? This is Aravali Polymers LLP, one of the very first cases of this LLP, right? एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें. The conversion of a company into LLP constitutes a transfer, and if the conditions of section 4713B are not satisfied, the transaction is chargeable to capital gain under section 45. ये टैक्स पिन का डिस्टिंग्विश किया. जब उन्होंने ये टैक्स पिन इंजीनियरिंग में क्या कहा था, उन्होंने कहा इट इज जस्ट मियर अ कन्वर्जन. So mere conversion will not require transfer. There has to be a transfer and transferee. There has to be a transfer and transferee. क्या जब ट्रांसफर था तो ट्रांसफर नहीं था, जब ट्रांसफर था तो ट्रांसफर नहीं था. That was held in tax bill. But in this judgment, they said no. In this case, it would be taxable now. If the assets and liabilities of the company are vested in the LLP at the book value cost, there is in fact no capital gain. Argument that section 58(4) of the LLP Act, it is entitled to carry forward accumulated losses unabsorbed depreciation of the company, notwithstanding compliance with 4713B is not acceptable. वो इसके ऊपर बेस कर रहे थे और इस सेक्शन के ऊपर बेस कर रहे थे. कहते नहीं, अगर आपकी वो जो 6-7 कंडीशन है वो मीट आउट नहीं हो रही तो आपको 47(3)B एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका वो ट्रांसफर माना जाएगा. This was held in the Celerity Power LLP जजमेंट 2018 का. अब आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि चाहे टैक्सेशन के हो एलएलपी के या कन्वर्जन के हो. और ये आपको मैं बता दूं, ये एक्सपर्ट्स पैनल है, expertspanel.in. कोई भी साइन अप कर सकता है फ्री. साइन अप करने के बाद एक लिंक आएगा, उस पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. आप फ्री है सारा कुछ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट पे पूछ सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ. आंसर आपके ईमेल में आएगा और यहाँ पे भी रहेगा, क्लिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा. आप अपने क्वेश्चन नहीं किसी और के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप चाहे रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तब भी आपको क्वेश्चन यहाँ डालिए, आप आंसर्स देख सकते हैं. आंसर्स देखने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की, आप कभी भी चेक कर सकते हैं. सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी फ्री है. देन आर्टिकल्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, सब कैटेगरी वाइज इसमें एप्लीकेबल है. ये प्रेजेंटेशन भी आई विल अपलोड ऑन दिस, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. एंड आई विल अपलोड दिस प्रेजेंटेशन आल्सो ऑन दिस lunawat.com as well as free mobile app Lunawat, so anyone can download this and use it. अब आपके कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एलएलपी कन्वर्जन, आई कैन टेक ऑल दोस. ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैं दोनों में अपलोड कर दूंगा, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो. मोनिका जी का क्वेश्चन है, कैन एन इंडिविजुअल टेक ऑडिट असाइनमेंट इन हिज नेम सेपरेटली if he is a partner in partnership firm? Yes, Monica ji, he can take. There is no restriction.
The only thing is that when you are filling those CAG or MEI form, then you have to say that apart from that partnership form, you are not working there whole time, you are practicing in your individual name also. तो वहां पर आपकी जो फर्म को जो कैटेगरी मिल रही है वहां पे आपका इफेक्ट आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितेंद्र जी, अभिषेक जी, ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया, दोनों ये साइट्स पे रहेंगे, आप वहां से डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है रिलेटेड टू दिस LLP? अनिल शर्मा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन है, कैन अ सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट इनटू LLP और प्राइवेट लिमिटेड? क्योंकि LLP और प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 लोग चाहिए, तो अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन नॉट बी कन्वर्टेड। आप पहले उसको पार्टनरशिप में कीजिए, तभी हो पाएगा। रवि खेमका जी का क्वेश्चन है, हाउ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर कन्वर्जन विल बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द LLP? यू नो, LLP का जो सोल होता है, वो सोल होता है उसका LLP एग्रीमेंट। तो जैसे आपने पार्टनर्स ने डिसाइड किया, आप उसको सेपरेट रखना चाहते हैं, आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट उनके क्रेडिट में करना चाहते हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको, वो बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको क्रेडिट कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल दैट, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट दे सकते हैं। यू कैन डू ऑल दैट। जावेद खान सुधाकर जी का क्वेश्चन है, CA फॉर्म टू बी कन्वर्टेड इनटू LLP, whether after conversion immediately new partner can be added or this addition to be done before conversion? Totally your option. आप चाहे पहले करें चाहे बाद में करें। आप जितनी बार भी करेंगे, बाद में करेंगे, तो आपको नया एग्रीमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसकी फाइलिंग फीस है। चाहे फाइलिंग फीस LLP के केस में कम है, मिनिमम 50, मैक्सिमम 200 रुपीज। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि अगर आप उसको डिलेड फाइल करते हैं तो 100 रुपए पर डे है। तो LLP में ये ध्यान रखिएगा, 2 एनुअल कंप्लायंस है। एक मेरी एनुअल रिटर्न है विच इज 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और दूसरी है मेरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विच इज 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी ये जो 30 अक्टूबर की डेट है वो। तो उसकी आपको फाइलिंग फीस हर साल देनी पड़ेगी। अगर आपने 4 दिन लेट किया, 5 दिन लेट किया, ये जो कंपनीज एक्ट में 100 रुपए पर डे की बात कर रहे हैं, दिस स्टार्टेड विद LLP एक्ट, उसके बाद कंपनीज एक्ट में आया। सर एक क्वेरी है, मैं बोलूं? बोलो ना। यस सर, खेमका जी बोलिए। सर जो मैंने बोला, एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बुक्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो भी सिमिलर डायरेक्टर की अदर कंपनी का कुछ शेयर हैं, जिसकी की बुक वैल्यू 10 ही लाख है, बट मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, 5 करोड़ के ऊपर है। इंटेंशन ये है कि कंपनी को कन्वर्ट करें LLP में, फिर LLP को डिसॉल्व करें और पार्टनर्स को वो शेयर ट्रांसफर करना है। तो भाई साहब, आप पहले तो ये समझ लें, अगर वो शेयर्स ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को, तो आपकी जो वो फर्म है उसको सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के अंदर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स लग जाएगा। LLP से जब ट्रांसफर होगा? यस, जब आप कैपिटल से आप ट्रांसफर करोगे ना पार्टनर को जी, तो 45(4) में फेयर मार्केट वैल्यू पे उस LLP को ट्रांसफर टैक्स लग जाएगा, और 5 साल तक तो आप वैसे भी LLP को खत्म कर नहीं पाओगे, आपको पार्टनरशिप रेशियो तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना 5 साल के लिए। बिल्कुल। ये सब चीजें, कोई ऑप्शन नहीं है सर? ऑप्शन क्या चाहिए इसमें? ऑप्शन कुछ भी नहीं है ऐसे। LLP को मतलब कंटिन्यू करना है विद शेयर, जब तक कर सकते हैं, अदरवाइज टैक्स दे करके उसको तो पार्टनर्स को ट्रांसफर करें। आपको शेयर जब भी आप उनको दोगे, जब शेयर दोगे तो यू हैव टू गिव इट एट द फेयर मार्केट वैल्यू। अजय कुमार जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट मैट क्रेडिट आफ्टर कन्वर्जन? आफ्टर कन्वर्जन मैट क्रेडिट गोज फॉर अ टॉस। आपको मैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। 115JAA में ऑलरेडी दे हैव मेंशन। हैंड रेज किया अनिल शाह जी ने। अनिल शाह साहब, अनिल शाह साहब आप अपना क्वेश्चन पूछें। एक रश्मिकांत जी चौकसी जी का क्वेश्चन है, LLP फाइलिंग फॉर दिस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोविड हैज बीन एक्सटेंडेड? नो।
व्हाई? मैं इस पे एक वीडियो भी सोच रहा था बनाने की, और मैंने उनको बोला भी एक्चुअली क्या किया, देयर इज स्कीम, एलएलपी स्कीम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम, जिसमें उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था कि 31 अगस्त तक का कोई भी मेरा ड्यू डॉक्यूमेंट है under the LLP Act, you can file up to 30th September. Now what they extended, the scheme is extended up to 31st December. यानी कि जो मेरा 31 अगस्त तक का जो ड्यू है उसको आप फाइल कर सकते हैं बाय 31st दिसंबर। यानी कि जो मेरे को एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी बाय 31st मई, उसको तो मैं फाइल कर सकता हूं 31st दिसंबर तक के लिए, पर ये जो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइल करनी थी बाय 30th अक्टूबर, उसकी एक्सटेंशन नहीं किया। मैं उनको बोल भी चुका हूं 1-to-1 बेसिस पे कि दे शुड अमेंड इट, बट अगर नहीं आया तो यही लॉ है। रुचि जी का क्वेश्चन है, कैन एलपी गिव लोन टू अनदर एलपी? इट कैन गिव टू एनीवन, इवन इट कैन गिव टू द पार्टनर, एनीवन। इट कैन टेक लोन फ्रॉम एनीवन, इट कैन गिव लोन टू एनीवन। इट इज जस्ट लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, जस्ट लाइक पार्टनरशिप फॉर्म। After the dissolution of partnership firm, what are the relevant steps is required to be taken immediately? What is the process of surrender of PAN of partnership firm? You know, you are talking about conversion or dissolution. If you are talking about dissolution, then yes, you have to first intimate under, I suppose, section 172, something like that, that you have discontinued the business, and then surrender the PAN to the income tax department. It is not the question of conversion, it is dissolution of the partnership firm. Then intimate that it has been dissolved to the income tax authorities. And GST number जो भी है वो सब surrender कीजिएगा। Site for experts advice is expertspanel.in, www.expertspanel.in. हाँ जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज दे कैन श्योरली आस्क। सर, एक आपने बताया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो आपको एलएलपी में इंटीमेट करना पड़ेगा, नया डॉक्यूमेंट साइन करना होगा। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखें कि जैसे सपोज हमने पार्टनरशिप करी, सीए फर्म के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एंड वी आर पार्टनर ऑफ स्टेट वाइज पार्टनर हो गए हम, से दिल्ली स्टेट में एक्स पार्टनर है, देन पंजाब में वाई पार्टनर है, एंड देन वी आर शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट वाइज परफॉर्मेंस। So whatever is the at head office or at central office, we are just consolidating all the data and submitting the return. Partnership mein there is no need of change the deed, because we in deed we have written that you are partner in charge of Punjab or Delhi, and profit of Punjab branch will be shared between you and us like this. But when we share percentage, if we calculate, then every year percentage of share will be changing, because 1 year the Delhi profit will be different and another year Rajasthan profit will be different. So how it will be dealt in LLP? Same, there is no change. There is no why it would be same. Chairman sir, it would be same. For this profit loss sharing ratio, you can have that state wise, unit wise, whatever you say, and head office getting the percentage, and then when you aggregate, calculate, and then it would be same. There is no change. So aggregate profit sharing ratio of every year will be different. Yes, it would. You know, in this case, you, whether it is LLP or partnership firm, you don't need to amend the agreement, right? Only for the income tax, when there is a tax audit, you'll have to show the different ratio. Otherwise, then it's okay. एक क्वेश्चन ये जो आया है, in final summary, partnership or LLP, which is better? You know, you have to take a call out here. It cannot be generalized. It would depend. मान लीजिए आपका क्लाइंट है, अब आपको मैं बताऊं, अगर क्लाइंट हमारे पास आते हैं ये कहने के लिए हमने एक कंपनी बनानी है, तो वो हमारे यहाँ से LLP बना के ही जाता है, कंपनी नहीं बनाता।
कोई कंपनी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं. दे वांट देयर लिमिटेड लायबिलिटी, यस, बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस. सो व्हेन दे आर डूइंग बिजनेस, कोई उन्होंने ऐसी चीज दी जहां पे ह्यूज लॉस आ जाता है, ह्यूज लॉस आ जाता है, तो वो लॉस में बैंकरप्सी आ सकती है. नाउ जैसे हम लोग एक इंडेमनिटी पॉलिसी है, सीएस कैन टेक इंडेमनिटी पॉलिसी, और इंडेमनिटी पॉलिसी हमारे इंस्टीट्यूट ने टाई अप कर रखा है. 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम कितना है? 5,000 रुपए. लेकिन उसके अंदर भी कवर्ड क्या है? उसके अंदर भी कवर्ड यही वाली लाइबिलिटी है जो लिमिटेड लाइबिलिटी है. जो मेरे को किसी लॉ की पेनल्टी और फाइन है वो कवर्ड नहीं है. मेरे को मेरे एक्टिविटी की वजह से किसी इंडिविजुअल को कोई लॉस हो गया, वो कवर्ड है, वो कवर्ड है. मेरे को किसी सेक्शन में कहीं कोई वो लग गया पेनल्टी, वो कवर्ड नहीं है. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैं, हाँ, अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई इस तरह का काम है जिसमें पब्लिक डीलिंग है, जिसके अंदर मेरे लॉसेस हो सकते हैं, देयर आई वुड से 100% टू रिस्ट्रिक्ट देयर लायबिलिटी दे शुड गो फॉर अ LLP. But when I'm talking about a profession like CS advocate, तो उनकी क्या सिविल लायबिलिटी होनी है? और अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया तो जिस मर्जी लॉ में करो कोई बचा नहीं सकता. उसके जो फाइन और पेनल्टी लगनी है, जो प्रोसिक्यूशन होना है, वो सिर्फ LLP कर देने से नहीं होता. वो तो कंपनी में भी नहीं बचता, कंपनी में भी नहीं बचेगा. प्रदीप पुरी जी, अनम्यूट योरसेल्फ. एक रुचि जी का क्वेश्चन है, if any of the shareholder do not become partner in the LLP, what step should the company take? Buy out his shares. Simple. उसके शेयर्स बाय आउट कर लो बिफोर कन्वर्टिंग. ट्रांसफर कर दो उसके शेयर्स. जो शेयर होल्डर लास्ट में रहेंगे वही पार्टनर रहेंगे. डियर फ्रेंड्स, जो भी हैंड्स रेज कर रहे हैं वो अनम्यूट करके और अपनी बात रख सकते हैं. हमने उनको अलाउ कर दिया है. प्रदीप पुरी जी, अनिल शाह जी, 1+60. You can unmute yourself and then ask your queries. हो सकता है उन्होंने गलती से हैंड रेज कर दिया. Okay. दीपक मंत्री जी का क्वेश्चन is NOC from registrar of firms necessary? The practical difficulty, registrar is not required at all. Deepak ji, no NOC is required from the registrar of firms. Who told you to seek such NOC? Not required. You just after converting, just file form 14, nothing else. अच्छा, ये चलो, एक जितेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा, what is the expectation of extension of tax audit dates? है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे थोड़ा सा दिल के करीब भी है. नहीं सर, अभी के जो अभी से चल रही सिचुएशन, उसमें ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है सर. अभी तो एक मिनट क्वेश्चन यही आ रहा है बार-बार, हर मोमेंट क्वेश्चन यही आ रहा है बार-बार. अच्छा जैन साहब, पहले तो ये पूछो कि हमको एक्सटेंशन क्यों चाहिए? बिल्कुल सही बोला सर आपने. हमको एक्सटेंशन जिनको चाहिए वो डिमांड कर नहीं रहे, और डिमांड सिर्फ हम कर रहे हैं. हमको क्या पेनल्टी लगनी है? वी आर द ऑडिटर. ऑडिटी एक डिमांड नहीं कर रहा सर. एक एसोसिएशन से जो एक व्यापारी से एक सिंगल ट्वीट नहीं करा उन्होंने, एक सिंगल लेटर नहीं लिखा, एक सिंगल मेल नहीं लिखा उन्होंने, और सारी टेंशन हम ले रहे हैं. अरे दिनेश जी, सब अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे होंगे, उनकी चिंता वो करेंगे, हमें क्या करना है? प्रमोद जी यही कह रहे हैं साहब, प्रमोद जी यही कह रहे हैं. यस सर, प्लीज. हाँ, तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ अपने सब दोस्तों को, पहले तो देखो हम लोग ये समझें, हम लोग ना दो बातें करते हैं. हम एक तो ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट को अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, है ना, हाई करो, लेकिन फिर हम वही मिनिस्ट्री में जाके कहते हैं कि वी आर इनकम्पिटेंट, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज एक्सटेंशन दे दो. हम एक्सटेंशन मांग रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि वी आर इनकम्पिटेंट. आप सब सीए कहेंगे नहीं नहीं हम तो कॉम्पिटेंट है, क्लाइंट टाइम से नहीं आ रहा. भाई जिस क्लाइंट को पेनल्टी आपके पास टाइम से नहीं आ रहा, आप उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? आप उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो?
डिपार्टमेंट में जब भी आप किसी भी एक्सटेंशन के लिए जाएं, चाहे वो टैक्स ऑडिट हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आरओसी हो, वो कहेंगे जो प्रोफेशनल है ही इज नॉट कॉम्पिटेंट. प्लीज read the last year when there was a tax audit extension. What is the wording written in the order of extension? हम तो सिर्फ जो ऑर्डर आता है एक्सटेंड हो गई वो डेट पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते ही नहीं है. उसमें उन्होंने लिखा है because of the lack of time with the professionals we are extending it. तो हम जितनी बार उनको रिक्वेस्ट करते हैं अपनी ही वैल्यू नीचे कर रहे हैं. जिस चीज के लिए मेरे को फर्क नहीं पड़ना, मैं यहाँ पर एसएससी की भी सुनता हूँ और डिपार्टमेंट की भी सुनता हूँ. मेरे को क्या पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ? कल को मेरे को कुछ हो गया, भगवान ना करे, कोई क्लाइंट आके हेल्प नहीं करेगा. Why are we seeking such extension? ना हो एक्सटेंशन, ये भी मैं साथ में कहूँ क्लाइंट मेरा है, एसएससी मेरा है, मेरे को फीस देता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा. अगर वो सही नहीं है तब भी उसकी हेल्प करूंगा. जब शो कॉज नोटिस आएगा उसको पेनल्टी नहीं लगने दूंगा, रीजनेबल कॉज दूंगा, अपनी फीस दूंगा अप्रोप्रिएट. बट व्हाई शुड आई वरी, दिन रात स्ट्रेस इतना लेके एक्सटेंशन. मैं क्यों बोलूं एक्सटेंशन मत करो, तुम्हारा एसएससी है. वी आर डूइंग ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. They are their SSC. We are getting the fee from them, very fine. मैं उसको बचा लूंगा. बट आपको अपने एसएससी की चिंता नहीं है तो फिर, और एसएससी को भी हमारी चिंता नहीं है, हम दोनों तरफ से. सो मेरा पर्सनली व्यू है कि बाकी हर एक का डिफरेंट व्यू हो सकता है. हम लोगों को काफी है कि हम लोगों को इंटीग्रिटी इतनी ज्यादा है, इतने सालों से हम लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं. मैं कहूंगा प्लीज एक तो स्ट्रेस ना लें, और दूसरा ये भी मैं कहूंगा प्लीज संडे को काम ना करें. ठीक है, सितंबर अभी ये लास्ट डेज में 1 आधा सितंबर करो, बट मैंने देखा हमारे भाई बहनों को कि वो 365 दिन काम करते. एक दिवाली होली छोड़ दो, या घर में कोई शादी ब्याह हुआ है तो उसको छोड़ दो, उसके अलावा वो संडे को भी काम कर रहे हैं. अरे भाई, काम जिसके लिए कर रहे हो थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को, माइंड को, फैमिली को, सबको दो. डोंट वर्क ऑन संडेज ऑन द हॉलीडेज. कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं संडे को कर लूंगा तो मेरे को ज्यादा रेम्युनरेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. हो सकता है कि मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है. नथिंग टू ऑफेंड टू एनीवन, प्लीज. थैंक यू. I think all queries has been resolved by our respected speaker Pramod Jain sir. So now I request our secretary CA Dinesh Ji Jain sir to please extend vote of thanks. Thank you very much, sir. Respected CA Pramod Jain ji, Central Council member and Chairman CSR Committee. Respected Pramod Bhup ji, Central Council member from my own city Jaipur, जो कि एग्जाम कमेटी के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं. Respected देवेंद्र सोमानी जी, Chairman CIRC. Respected whole members from CIRC. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. सबसे पहले तो इस टैक्स ऑडिट के मसले के लिए सर, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात बोली है कि हम ऑडिटर हैं, हमको ऑडिटर रहना है, सामने और ऑडिट ही है. ये दोनों की म्यूचुअल जरूरत है. ऐसा नहीं कि सर जरूरत हमारी ऑडिट करने की है, जरूरत उसकी भी उतनी ही ऑडिट करवाने की, डेट एक्सटेंशन करवाना जितनी हमारी जरूरत उसकी भी है सर. और सर सबसे बड़ी बात आपने जो बोली, स्ट्रेस ना लें. स्ट्रेस लेने पे क्लाइंट हमारे कभी भी भला करने वाला नहीं है. एक और चीज सर, जो जल्दबाजी में हम करते हैं, लास्ट मोमेंट पे करते हैं सर, आज तक यही होता है कि जब कभी कुछ हुआ है तो क्लाइंट ने सिर्फ एक ही चीज बोली, साहब मुझे पता नहीं, मेरा सीए जानता है. हमने साइन कर दिया और लास्ट मोमेंट में ये बोलेगा मुझे पता है, मेरा सीए जानता है. तो प्लीज, हम हैं तो सब कुछ है. तो आप अपनी केयर करें, अपनी फैमिली की केयर करें, तो आगे सबकी केयर हो जाएगी. यदि हम खुद रहेंगे तो सर आगे सबकी केयर कर पाएंगे. हम खुद नहीं बचे तो किसी और केयर कैसे कर पाएंगे. एंड प्रमोद सर, आपका जो सेशन था, इट वॉज वेरी एक्सीलेंट. मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चंस थे सर, आपका एक ये स्टाइल बहुत शानदार है कि सारी क्वेरी उस टाइम आपने रिजोल्व कर दी. वो क्योंकि क्या होता है सर, जब सेम टाइम क्वेरी रिजोल्व हो जाती है तो जो अगर कोई सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आते हो तो आदमी के दिमाग में सर वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं. तो मेरे ख्याल से आपने दोनों काम कर दिए, आपने समझा भी दिया, आपने क्वेरी रिजोल्व कर दी. और जिस तरह से सबके रेस्पॉन्स आ रहे हैं सर, वो रेस्पॉन्स शानदार है. क्योंकि एक स्पीकर के लिए सबसे अच्छी चीज यही कि लोग सुन के उसको थैंक्स बोलें. यही मोमेंट हो, यही अप्रिसिएशन है, यही सब कुछ है. और वो लोग कंटिन्यू दे रहे हैं सर एकदम.
तो सर बस आपसे सर निवेदन यही है कि आप हमारा साथ इस तरह देते रहें, आपका सानिध्य, आपका ज्ञान हमको ये मिलता रहे। पूरी CIRC और पूरी ICI आपके ज्ञान से लाभान्वित होते रहे, क्योंकि आप तो अपने आप में सर ज्ञान के अथाह सागर हैं। और न सिर्फ ये कन्वर्जन, इनको जो इनकम टैक्स के ऊपर भी आपका बहुत बढ़िया कमांड है सर। और आपने जो भी बोल दिया टैक्स ऑडिट के लिए, मेरे ख्याल से सब कुछ बोल दिया। ये हाँ, डेट बढ़ रही है, 99.9% यही है, डेट बढ़ रही है। आप रिलैक्स भी रहे, ऐसा नहीं है, बढ़ेगी। वही लास्ट मोमेंट के ऊपर ही, वही 1-2 दिन पहले, 2 दिन में 3 दिन पहले 3 जगह रिट लग चुकी है। RTC रिट लगा चुका है, गुजरात में रिट लग चुकी है, MP में लग चुकी है, महाराष्ट्र कर रहा है, और डेट बढ़ेगी। मतलब उम्मीद यही है, लेकिन कोई ठप्पे से नहीं बोल सकता कि डेट बढ़ गई, बढ़ेगी। यस सर, सही में सही कह रहा हूं सर मैं। थैंक यू वेरी मच। एंड एक और चीज, हाँ मतलब होशियार रहें, लेकिन होशियारी ना बरतें। लापरवाही बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि हमको जो मिलना होता है सर, रियल में सर देखा जाए प्रमोद सर, हम लोग सर रियल इकोनॉमिक वॉरियर है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर खुद भी काम कर रहा है, उसका स्टाफ भी काम कर रहा है, क्लाइंट भी आ रहे हैं, क्लाइंट का स्टाफ भी आ रहा है, और सर फिर भी हमने 1 सेकंड में हम लोगों ने काम नहीं रोका है। जब जब क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, तब तक उसका कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो बस आपसे निवेदन यही है कि अपने आप को इस कोरोना काल के अंदर संभाल के रखें। बार बार यही कहा जाता है सर, जब हम प्लेन में सफर करते हैं तो सर वहां भी ये लिखा होता है, पहले खुद को संभालें। यदि खुद को संभाल पाएंगे तो किसी को संभाल पाएंगे। तो बस यही आप लोग करें, पहले खुद को संभालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय ICI। Thanks a lot. Thank you, Devendra bhai, Dinesh ji, for inviting me. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. सबको बहुत बहुत धन्यवाद।